Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So this is a very important session on artificial intelligence, and this session is very important for the aspirants, those who are going to write the examination, UGC NET and different competitive examinations like PhD entrance examination and SET examination. In this video, in one single session, I'm going to cover all the important aspects of artificial intelligence. What are the frequent asked questions and what are the different important topics that also we are going to revise. So completely, this is a power booster session where you will reboot, recall and revise all the important concept of artificial intelligence. So without wasting our time, let us quickly start with our session. And yes, this is our official YouTube channel. If you are watching the video for the first time, please subscribe to the channel and hit the bell icon for all the notification. Now, before revising any topic, it is very important to know the marks distribution. So artificial intelligence is the unit 10 in the SET examination as well as in the UGC NET examination. In this paper, we have total 10 units and artificial intelligence is the last unit. So unit matter nahi karega. Each and every unit se you are getting the 10 important question. And agar main artificial intelligence ki baat bataun, so we are getting 4 to 5 repeated frequently asked question from the previous year question. हर बार previous year के question से question draft किया जा रहा है, पूछा जा रहा है. तो आप easily अगर आपने 3 से 4 साल के previous year question को solve किया है, then also you will be easily solve 4 and 5 question. इसके बाद यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन ऐसे देखे जा रहे हैं जो हर बार आपको ट्विस्ट किए जाते हैं. इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी वरी मत करिए, बिकॉज इफ यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट देन ओनली यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट राइट. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो ऑन एन एवरेज आपका यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन हो रहा है. इसके बाद आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अनएक्सपेक्टेड कभी पूछ लेते हैं. बहुत पुराना क्वेश्चन है, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पूछ लिया जाएगा. समटाइम्स रिलेटेड टू न्यू टॉपिक, दैट इज दे कैन आस्क यू प्लानिंग ग्राफ so and so. So this is the marks distribution for this unit. Now, why this session is important? Because it is recall, revise and reboot the artificial intelligence search technique. Now let us quickly see what are the important topic. The most important topic in the entire unit is search technique. Okay, so in the search technique we have two different type of search technique. One is informed and another one is uninformed search technique. Okay, so nowadays please mute yourself. Nowadays they are not going to ask you any question which is related to the thing. Okay, please mute yourself. Yes, so nowadays they are not going to ask you very easy question like what are the search technique which comes under informed, which are the search technique which comes under uninformed. No, they are not going to ask the question. Question are asked from the property based question. Okay, so let us quickly revise all the search technique. Now I will start with the first search technique, that is the DFS. So what is DFS algorithm? So when I am talking about DFS algorithm, so in the DFS algorithm we can say depth first. So if this is the tree given, okay, if this is a tree or the graph given, we are doing the search on the basis of depth. Depth में जाना है, हमें कहाँ जाना है? Depth में जाना है. Now when we are traversing any path in the graph, तो कुछ ऐसे nodes होंगे that we are not going to traverse. It means DFS में आप जब end position तक जाओगे, that is depth तक जाओगे, you need to traverse all the maximum depth. Okay, जो भी आपका maximum depth होगा. Like in this graph, if I am selecting this path, तो ये path हम नहीं select करेंगे. Why? Because we have another level. It means आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे. So this is the maximum depth. Now if we talk about the property of DFS, तो DFS क्या है? Depth first. Okay, हमेशा हम depth को analyze कर रहे हैं. So that is why we are using stack to implement this data structure. और stack की अगर मैं बात बता दूं, तो stack के जितने भी properties होते हैं वो सारे properties आपके DFS के हो जाएंगे. And now because we are ignoring some of the nodes, so that is why this is not complete and not optimal. Because हो सकता है जो path मैंने और आपने select किया है वो path आपको end goal तक लेकर नहीं जाए. So that is why it is not complete and not optimal. इसके बाद अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक द ब्रांचिंग फैक्टर एंड कितना मैक्सिमम डेप्थ है. ओके, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ
DFS, because we are traversing branch wise and the maximum depth, so that is why it is the exponential. And अगर मैं space complexity की बात करूँ, so that is the linear. Why it is linear? Because as I told you, we are ignoring some of the path node. So this is the DFS algorithm. Okay. Now let us quickly see what is the property of BFS. So breadth first. So we are traversing like this. Okay. So this is the queue-based technique. This is a queue-based data structure. Now, because it is that queue data structure and this is like the graph is given, then it means it is going to traverse each and every node level wise. Level wise हम सारे node को traverse करेंगे, okay? अब level wise अगर हम सारे node को traverse करें, it means कि we are going to traverse each and every node. So that is why time and space complexity of BFS is what? Order of B to the power M. यहाँ पे सारे नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे, दैट इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर वी आर गेटिंग. नाउ DFS BFS में कॉमन से एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट BFS तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेगा, एंड अगर हम DFS की बात करेंगे इट इज इंप्लीमेंटिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. ओके, और हमने कॉम्प्लेक्सिटी में भी चेंज देखा, बिकॉज दे हैव नॉट स्टोरिंग ऑल द nodes, so that is why it is linear in terms of space complexity, और यहाँ पे आपका exponent होता है. In both the terms we are getting this exponent time complexity. Now इस पे कई सारे आपके applicative question पूछ लेंगे. In terms of machine efficient, obviously BFS is the good algorithm. In terms of space, DFS is the good algorithm. Now because we are traversing and storing all the nodes, so that is why it is complete as well as optimal. तो ये दो तीन features आपको याद करना है हर एक ग्राफ से related. And yes, if we talk about artificial intelligence, they are not going to ask you the traversing path because that is the part of data structure. और जो recent मैंने अभी एक वीडियो कवर किया चैनल पे, उसको जरूर देख लीजिएगा. There I have discussed all the concept of BFS and DFS as per the data structure and algorithm. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग. ओके, नाउ सिमिलरली आई विल जस्ट मूव टू सम मोर different slide. See, this is the very important slide, the last minute cheat node. This is known as cheat node. Okay, and these all are the search technique which are the part of your uninformed search technique. These all are the part of your uninformed search technique. Okay, we don't have the knowledge about the path cost and so and so. Now when we are talking about this uninformed path search technique, DFS BFS bidirectional so and so, nowadays they are asking a question on the multiple choice question, but if you will see the recent year question of 2021, somehow जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो बहुत डेप्थ में जाके पूछा है. ओके, उसको भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. First, I will give you a quick revision of all the uninformed search technique. Now, DFS में हमने क्या पढ़ा? स्टैक के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे. ओके, सारे नोड को ट्रैवर्स नहीं करते, so that is why in terms of space it is linear. Now when we are talking about time complexity, because कि हमें एक optimal solution चाहिए, so that is why it is exponential. And yes, because we are ignoring some of the nodes, so that is why it is not complete, it is not optimal. So these are 4 and 5 important features of DFS. Now let us quickly see what is BFS. So yes, Kavita, I just want you कि आप एक बार group में डाल दीजिए. The learners who want to join, they will join immediate for the revision purpose. I want everyone to join and revise. Okay. Now, when we are talking about BFS, so BFS breadth first. So that is why all nodes are traversed and it is traversed by the queue data structure. Now, because we are traversing all the nodes, so that is why in terms of time and space complexity, आप यहाँ पे किसको we are considering? We are considering the deepest node. Okay, सारे level को traverse करना है, so that is why it is a deepest node. And because we are not ignoring any of the node, सारे node को consider करेंगे, so that is why it is optimal and complete. तो ये तो important आपका data structure है जिसके थ्रू हम search technique को implement करते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऐसा पूछ लूंगी, जैसे आपका सर्च टेक्निक है एक मिनीमैक्स. ओके, मिनीमैक्स एवरी टाइम यू आर गेटिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम द मिनीमैक्स. बेसिकली आपको एक ग्राफ गिवन होगा. ओके, यू विल गेट लाइक दिस ग्राफ. इस ग्राफ में आपको वो कुछ लेवल्स पे डिफाइन कर देंगे. दिस इज द मैक्स लेवल, दिस इज द मिनिमम लेवल, एंड अगेन ऑल्टरनेट बेसिस दिस इज द मैक्स लेवल.
certain values will be given like 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, and you need to calculate the maximum or the minimum graph. Now एक recent year का क्वेश्चन पूछा गया है कि when we are implementing the min max tree, जब आप इस ट्री को implement करोगे, then we are implementing this tree by the help of DFS. क्यों? क्योंकि हम डेप्थ में जाके हर लेवल बाय लेवल पे ट्रैवर्स करेंगे. So सबसे पहले इस लेवल की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, then we are comparing this level and then we are comparing this level. तो डेप्थ से शुरू कर रहे, so that is why it is based on DFS. Now प्रीवियसली एग्जाम में देखा गया है, आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया 2021 में. द एस्पिरेंट्स दोज हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप अल्फा बीटा प्रोनिंग को जरूर पढ़ के जाएं, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्टेड आए थे, इस बार समहाउ इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो अल्फा बीटा क्या है, हाउ दिस बोथ ग्राफ डिफर, अल्फा बीटा में प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे कैन आस्क यू. ओके, तो ये एक सर्च टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ BFS एंड DFS. नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्च टेक्निक है, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मींस यूनिफॉर्मिटी. जैसे हम एक लेयर में आपको पढ़ा रहे हैं ना, सो वी आर गिविंग द यूनिफॉर्म क्लासेस डेली बेसिस पे अगर आएंगे, दैट इज द यूनिफॉर्मिटी. Because this is a uniform cost, okay, every time we are considering what the minimum cost. हमेशा हमें उस नोड को ट्रैवर्स करना है या उस नोड को विजिट करना है जिसका कॉस्ट सबसे कम आएगा. नाउ दैट इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आई वाज ऑलवेज लुक फॉर द चीपेस्ट रूट. कौन से रूट को मैं ट्रैवर्स करूं जहां पे मुझे जाने में ट्रैवलिंग कॉस्ट कम लगे और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. दैट इज द सेम थिंग. That is why we are making this search technique. If I want to visit from one city to another city, तो किस तरीके से मेरा cost minimum होना चाहिए और profit हमारा maximum होना चाहिए. Okay, and this is based on the concept of priority queue. So that is why इसमें सारे property आ जाएंगे आपके BFS के. It is optimal, complete, and it has the same feature. Similarly, when I will talk about depth limit, अब depth है, नाम से आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज समहाउ सिमिलर टू DFS. ओके, सिमिलरली देखो ये भी कंप्लीट नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है, बट यहाँ पे हम एक लिमिट डिफाइन कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DFS एंड द डेप्थ लिमिट? सी, in the case of DFS, because we are traversing from one start position to the depth, so it can be a chances कि we can stuck into a loop. क्या बोला मैंने कि we will stuck into the loop. loop का ये मीनिंग है, what I thought is कि मैं यहाँ से ये पार्ट ट्रैवर्स करना शुरू की हूँ. ओके, I will just make a diagram. I have started traversing for this way and this way, again this way, but ultimately यहाँ पे मेरा गोल स्टेट मुझे नहीं मिला. and what I will do, मैं बैक ट्रैक करूंगी, and again I will go for the another path. तो हो सकता है कि मैंने इतने नोड को ट्रैवर्स कर लिया, अल्टीमेटली दैट इज अ इनएफिशिएंट एल्गोरिथम एंड मुझे गोल स्टेट भी नहीं मिला. सो देयर आर द चांसेस कि वी विल स्टक इनटू द लूप एंड दैट इज नोन एज स्टकिंग इनटू लूप. यस, सो इन दिस केस अगर मुझे कुछ लिमिट तक, इफ वी आर नॉट गेटिंग द गोल स्टेट, देन बिकॉज कि हमने एक लिमिट डिफाइन किया है, उसके आगे हम किसी भी नोड को ट्रैवर्स नहीं करेंगे. एंड दैट इज हाउ दिस इज फार बेटर देन एज कंपेयर टू DFS. सिमिलरली अगर हम इटरेटिव डीपनिंग की बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटरेटिव? इटरेटिव मींस वी आर डूइंग द मल्टीपल टास्क अगेन एंड अगेन. चलो ये पार्ट ट्रैवर्स किया, इस पार्ट में मुझे गोल स्टेट नहीं मिला, देन आई विल मूव टू द अनदर पार्ट. Okay, and yes, we are getting the result here. Yes, and because we are using deepening, so that is what is represented by D. So this is a cheat node for the uninformed search technique. बाई डायरेक्शन सर्च की बात करें तो बाई डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से और दूसरे डायरेक्शन से, दोनों एंड पोजीशन जहां पे मिलेगा वहां पे आके वी आर गोइंग टू फाइंड द गोल स्टेट. सो दैट इज व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी हियर रिड्यूसेस बाय हाफ, एंड बिकॉज दिस इज अ बेटर अप्रोच देन द BFS, सो दैट इज व्हाई आल्सो इट इज ऑप्टिमल एंड कंप्लीट. अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड यू कि व्हिच एल्गोरिथम इज कंप्लीट, व्हिच एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल, किस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. इसके अलावा अभी तक कोई भी आपके बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक से नहीं पूछा गया है.
Now the second part is informed search technique. Now the name itself say which has certain information, like we are going to solve some of the complex problem by using the informed search technique. Okay, now in the informed search technique, we have greedy based, A star, recursive and SMA star. इससे सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, and always we are getting question from the greedy, A star and recursive. Okay, सबसे पहले ये समझना है जो अभी हमने टेक्निक पढ़ा BFS एंड जो टेक्निक हमने DFS पढ़ा, when I will combine the feature of both the algorithm, it will become the best search. क्या निकल के आएगा ये निकल कर आएगा best first search, which combines the feature of DFS as well as BFS. Okay, now in the best first technique, we have lots of different versions. One version is greedy, another version is recursive. So what is greedy? Greedy कौन है? मैं हूँ greedy. आपकी classes लेके आती हूँ, free of cost लेकर आती हूँ, फिर भी आप class join नहीं करते. And these sessions are very helpful to qualify the examination and any PhD entrance examination as well. Greedy हूँ मैं, मैंने पूरा situation analyze नहीं किया. Okay, on the basis of certain knowledge, certain perception, I have just selected one of the path. तो मैंने क्या देखा, मैंने रिसेंट में क्या मुझे प्रॉफिट होने वाला है सिर्फ उसको एनालाइज किया, बाद में जाकर मुझे क्या प्रॉफिट होने वाला है या फिर अल्टीमेटली वो लॉस होने वाला है, उन फीचर्स को मैंने एनालाइज नहीं किया. That is the meaning of greedy. Okay, so we have lots of greedy algorithm, lots of dynamic programming algorithm and lots of divide and conquer algorithm. So that are the part of data structure वो आपको remember होना चाहिए. Now in the greedy based search we can see this is the most important objective function. Now in this case all the informed search technique we have certain objective function. So how we are going to analyze it? So this is the objective function where we are considering the cost. And this cost is known as the minimum cost. Okay, this cost is known as minimum cost. Okay, so this is complete, no. This is optimal, no. And in terms of times and space complexity, it is order of B of D. That is the exponent complexity. Now in the greedy based search, the most important point is that is multiple time asked in the examination is objective function. Okay, in the objective function we can say whenever you are getting some question like minimum cost है, सबसे कम cheapest cost है, so these are the keywords to identify greedy based search. If I'm talking about A star, so this is the well-known A star technique. Why? Because it analyzes the intermediate result also. Intermediate result means कि we are analyzing all the small path cost. हम एक भी decision ऐसा नहीं लेंगे जिसमें हम without analyzing the circumstances or situation we are taking the some decision. No, हर एक simple cost को analyze करेंगे. So that is why this is admissible and this is complete and it is also consistent. A स्टार से रिलेटेड आज तक ऐसा कोई पेपर ड्राफ्ट नहीं हुआ है यूजीसी नेट में जिसमें A स्टार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. स्टे काम, इन द सेम वीडियो इटसेल्फ में A स्टार की सारी प्रॉपर्टीज लेकर आई हूं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी. ओके, अब एडमिसिबल क्या है, कंसिस्टेंट क्या है, ट्रायंगुलर inequality feature क्या है. So these are some of the topics related to A star and it has all the features. इसके बाद आपका एडवांस वर्जन है SMA star. The full form is very important, simplified memory bounded. So because in the A star we have the exponent complexity, so that is why somehow we have defined some of the boundary. So it has all the feature of A star and it is also optimal and complete. Okay, अब recursive based search क्या है? Recursive, as we all know, recursive is the word which implements the stack. Because we are implementing the stack data structure, so that is why it has the space complexity linear. और एक ऐसा greedy based search ही ऐसा technique है which is not complete and which is not optimal in the informed search technique. Otherwise all the search technique of informed are complete and optimal. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए अब एक मैं आपको हाईलाइट बता दूं कि किस तरीके से रीजन में क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड दैट क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इजी. इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट देन दैट इज द डिफिकल्ट. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, इन दिस क्वेश्चन इट हैज रिटन given below the two statement and that is why this is difficult. Why? Because if the statement based question are there then आपको पढ़ना है और समझना है.
Breadth first search, which is also known as BFS, is optimal when all the step costs are equal, whereas uniform cost search is optimal when with any step cost. तो अभी हमने पढ़ा BFS और अभी मैंने आपको पढ़ा यूनिफॉर्म कॉस्ट, और ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है. BFS हमने अभी देखा है कि ये ऑप्टिमल है, तो यहां तक आपका आंसर हो गया ट्रू. नाउ यूनिफॉर्म कॉस्ट भी हमने देखा है ऑप्टिमल है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. बट एट विच कंडीशन इट इज ऑप्टिमल? जहां पे सारे स्टेप कॉस्ट की बात की गई है. अब आप सोचेंगे कि मैम ने स्टेप कॉस्ट नहीं पढ़ाया. डियर स्टूडेंट, if this is my graph, so if I am selecting any of the path and if the selected path is correct, that is my step cost. अगर मैं इस path को होके ट्रैवर्स कर रही हूँ, अगर इसका ये 12 है, 11 है और अगर इसकी 15 कॉस्ट है, तो दैट इज द स्टेप कॉस्ट. अब आप एक चीज रिकॉल करिए. रिकॉल ये करना है कि BFS में आप सारे नोड को ट्रैवर्स करते हो. ओके, सारे नोड को ट्रैवर्स करोगे और अगर सारे स्टेप कॉस्ट इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इसकी वैल्यू 11 11 11 11 11 रख दी, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एल्गोरिदम ये बोल रहा है कि आपको सारे नोड को ट्रैवर्स ही करने हैं BFS में. तो यस, अगर सारे स्टेप कॉस्ट भी इक्वल है तो यहाँ पे इक्वलिटी है, तो ये ऑप्टिमल ही रहेगा. अब ना हम यूनिफॉर्म कॉस्ट की बात कर लेते हैं. यूनिफॉर्म कॉस्ट में बोला है विथ एनी स्टेप कॉस्ट. एनी स्टेप कॉस्ट का मतलब है, चलो मैं ये डायग्राम बना देती हूँ, बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, और इसी से आपको दूसरे क्वेश्चन पूछ लेंगे. विथ एनी स्टेप कॉस्ट, चलो 1 2 3 4 5 6, so I have taken the distinct step cost. Now from the property of uniform cost, what we have learned कि we will always select the cheapest cost. सारे को नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ cheapest कॉस्ट को सिलेक्ट करना है ना. तो अगर आप एवरी टाइम वी आर गोइंग टू सिलेक्ट cheapest कॉस्ट, इस मीन कितना भी कॉस्ट डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आपका स्मॉलेस्ट cheapest कॉस्ट को लेगा. सो दैट इज इट इज आल्सो ऑप्टिमल. तो ये क्वेश्चन पहली बार एक नया क्वेश्चन देखा गया है यूजीसी नेट में. इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, एंड ये समहाउ मैं बोलूंगी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज स्टेप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं पढ़ाया था मैंने भी पहले. ओके, स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं, when all the step costs are same, uniform cost expends more nodes at the depth D than the BFS. now अगर मैंने यहाँ पे सारा यूनिफॉर्म कर दिया, चलो यहाँ पे अब यूनिफॉर्म कर देती हूँ. इफ आई एम टेकिंग 1 1 1, यूनिफॉर्म में क्या हमने पढ़ा कि cheapest कॉस्ट लेना है. Now because the step cost is equals to cheapest cost and which is equals to uniform, सारा सेम है, तो क्या फर्क पड़ेगा? एल्गोरिथम में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. सारा यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा डेप्थ तक जाके एनालाइज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो यस, इफ इट हैज डिस्टिंक्ट स्टेप कॉस्ट, तो उस केस में यूनिफॉर्म कॉस्ट विल बिहेव मच, इट विल वर्क मच फास्टर एज कंपेयर टू BFS. और अगर आपका सेम कॉस्ट है तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म कॉस्ट विल बी एज कंपेयर टू BFS, उसको एग्जीक्यूट करने में somehow it is a time taking. Now from learning both the statement, आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गए? ट्रू हो गए. So this was some of the questions which was not very easy if you don't know the concept. ठीक है, अभी पढ़ लिया BFS क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, DFS क्या है. अब वो आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं कि ऑप्टिमल है नहीं है, किस कंडीशन पे ऑप्टिमल होगा, किस कंडीशन पे वो कंप्लीट होगा, किस डिफरेंट सिचुएशन पे वो दूसरे तरीके से बिहेव करेगा. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एंड दे आर द क्वेश्चन फ्रॉम द IITs. ओके, IITs में इस तरीके से पढ़ाई होती है और वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Now let us quickly see to the next important question is, see which of the statement is the false. यहाँ पे false statement पूछा गया है, तो false statement क्या हो जाएगा? false statement आपका यहाँ पे हो जाएगा C, greedy best first is not optimal but it is often efficient. Just now we have seen it is not optimal. Yes, it is the true statement. तो A ऑप्शन तो यहाँ से आप डिलीट हो जाएंगे. Now the second part, हमेशा आपको मैं अपने बैच कोर्स में सिखाती हूँ कि when you are solving the competitive examination, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ना है. एक ऑप्शन के लिए अगर मैं 100% श्योर हूँ तो वहां से ही मैं ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करूंगी, बिकॉज हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही देना है. तो आपका ये टारगेट होना चाहिए you are going to solve the question immediate. Now A star is complete, optimal. So yes, we have just now seen कि A star is complete and optimal. So this is again the true statement.
Okay. Now, recursive based search is efficient in terms of time complexity, but poor in terms of space complexity. Just now we have seen recursive best for search. So it uses the concept of a stack, and because it is using the concept of a stack, so in terms of space complexity, this is linear. And because it is linear, then that is efficient. But it has written poor in terms of space. So this statement is the false statement. Question they have asked you false statement. So this means either C or either D option will be correct. Now, h of n equals to 0 is an admissible heuristic for the 8 puzzle problem. So what is h of n? So h of 1, h represent the heuristic value and n represent the node. Okay, so yes, if the h of n value is 0, then we are considering it as an admissible. So what is admissible? Just now I will go and explain everything. Okay, so this statement is also true. So that is why the correct answer is option number C, which is a false statement. Now, the learners who will watch this video, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का पूछा जाएगा, एक नहीं, मैं 2 क्वेश्चन का दावा कर रही हूँ इस वीडियो में. अगर आपने इस पूरा वीडियो अच्छे से देखा तो एटलीस्ट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 से 3 क्वेश्चन सही होंगे. And what is the meaning of admissible? So first you need to know कि A star is admissible. So what is the meaning of admissible? Admissible means admire करना, है ना? Admire करना. अगर मैंने बोला I am going somewhere and I am expected कि मेरा जो cost है वो 100 रुपीज आने वाला है. अब मैं उस जगह पे पहुंच गई और मुझे 95 रुपीज देना पड़ा, तब तो 5 रुपए मेरे जेब में आ गए. 5 रुपए जेब में आए, इसका ये मतलब है कि आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था विच इज लेस देन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, है ना? एस्टिमेशन किया 100 रुपीज का और एक्चुअल जो आपको कॉस्ट आया, सॉरी जो एक्चुअल कॉस्ट आया वो 95 आया, तो दिस इज लेस देन 100. तो ये केस आपका एडमिसिबल हो जाएगा और आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे. सो दिस इज द सेम थिंग. Heuristic function is called admissible if h of n is never larger than h of a star. अब समझने वाली बात है, h of n क्या है मैम, h star n क्या है? तो h of n is never larger than, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आपने बनाया है that is h of n, and what is h star? तो h star is the heuristic value, okay, or I can say that is the approximate value or the estimated value. Now sometimes in the examination they can also write what is the meaning of h of n and what is the meaning of h star, okay. So yes, it should always be less than or equal to the true cheapest cost from n to the goal, and it is admissible, it uses admissible heuristic, and h of goal state is 0, and that is why it guaranteed to find an optimal solution. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कई बार आपको स्टेटमेंट पूछा है. इफ इट इज अंडर एस्टिमेट, इफ h इज अंडर एस्टिमेट, इट मींस इट विल गिव यू ट्रू कॉस्ट और ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी दे कैन आस्क यू एडमिसिबल किस केस में होगा, व्हेन h of n is 0, और आई कैन से जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है वो लेस देन आ गया आपके एक्सपेक्टेड कॉस्ट से. ओके, सो दैट इज वाई हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट करना है वैल्यू को. नाउ आई गेस दिस स्लाइड इज रिपीटेड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड. इट इज कंप्लीट. यस, time in terms of time and space, yes, it is, although it is exponential, but still we are getting the complete and optimal solution. Okay, now this was the question of 2018. Simply आपको statement 1, statement 2 और statement 3 पूछा गया था, and in the examination they have asked you कि what are the correct statement. तो तीनों आपके statement यहाँ पे correct है. अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम C स्टार क्या है, ये तो इस स्लाइड में लिखा नहीं है. Dear student, f of n यहाँ पे represent कर रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? f of n इक्वल्स टू योर g of n प्लस h of n. तो व्हाट आर दिस टर्म? कि अगर ये मेरा स्टार्ट गोल है, ओके, एंड इफ आई वांट टू रीच हियर, तो स्टार्ट से एंड गोल तक जाने के लिए मैं एक इंटरमीडिएट नोड को फॉलो करूंगी. सो दिस इज माय g of n and this is my h of n. So this is why we need to add those values, and c स्टार क्या है? ये मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ना, जो हम एस्टिमेट करें. दिस इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. So this is all the things about the A star. Now let us quickly move to the second part of the question. Now you can see propositional logic, first order predicate logic. So these are the knowledge representation in artificial intelligence. तो कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत मुश्किल होती है. सबसे पहले तो आप समझो ये 2018 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं किया है और 2021 में पूछा है. तो ये फ्री के मार्क्स हैं जो आपके किसी भी हालत में मिस्टेक नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन में. इसीलिए अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है. 2018 से लेकर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए,
कोई भी रोक नहीं पाएगा आपका नेट क्वालिफाई होने से, है ना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है, इफ यू हैव अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है देन इट इज फाइन। अगर आपने नहीं पढ़ा है, 2 से 3 बार इस लाइन को पढ़ना है और एलिमिनेट करना है। देयर इज अ कंट्री, देयर इज अ कंट्री, तो यहाँ पे आएगा देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल होता या ऑल स्टेटमेंट होता तो आपका ये क्वांटिफायर होता, ठीक है। तो देयर इज अ कंट्री दैट बॉर्डर बोथ इंडिया एंड नेपाल। एक कंट्री ऐसा है, एक्स ले लो, जिसका बॉर्डर इंडिया में भी है और नेपाल में भी है। तो देयर एग्जिस्ट अ कंट्री, देयर एग्जिस्ट अ कंट्री, देयर एग्जिस्ट अ कंट्री, देयर एग्जिस्ट अ बॉर्डर। तो ये तो मैं पहले ही कैंसिल कर दूंगी एग्जामिनेशन में, विद इन 10 सेकेंड ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। तीनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा, अगर हम कंट्री की बात करेंगे, इफ दिस इज अ कंट्री, कंट्री के अंदर आपका इंडिया आएगा, कंट्री के अंदर आपका नेपाल आएगा, ये तो तीनों को मिला दिया, तो ये स्टेटमेंट भी छांट देंगे आप। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना है, सेट प्रॉपर्टी, प्रोपोजिशन लॉजिक, सबका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। और इसीलिए मैंने बोला रिकॉल करना है, रिवैम्प करना है अपने स्टडीज को। ओके, नाउ लेट अस सी बॉर्डर ऑफ सी इंडिया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आना चाहिए, दिस इज द क्वांटिफायर विच इज नोन एज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीफाई कर रहा है, और ये तो आपके अरिस्टोटल और आपका इंडियन लॉजिक पेपर 1 का भी पार्ट है। इम्प्लीफाई जिसका मतलब है जो भी स्टेटमेंट है, पी इफ क्यू देन इट मीन्स, इसको पी में लिखना है, यूनियन आपको क्यू कर देना है। नाउ अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट आना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, इस पूरे को इम्प्लीकेशन में रखा है और इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। आप जब चाहेंगे अपनी मर्जी से ब्रैकेट नहीं लगाएंगे एग्जामिनेशन में, तो दैट इज वाई ये तीनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। बिकॉज अगर मैंने 2 + 3 + 5 लिखा है, -6 और या मल्टीप्लाई कुछ भी लिख दिया, तो ऐसे भी हमें पता है वी आर गोइंग टू अप्लाई द बॉर्डमस रूल। सिमिलरली अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लगा देना है प्रोपोजिशन लॉजिक में। यू नीड नॉट टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम योर माइंड, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको पढ़ना और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। Now let us solve this question. This is the another type of question जो मैंने लिया है related to environment. Now we all know in the environment you have 4 different type of environment. Okay, environment can be dynamic, environment can be static, stochastic, predictable, not predictable. So when the environment of an agent is partially observable, in such space following problems could occur. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एजेंट की बात करते हैं, हु इज द एजेंट, आई एम द एजेंट, यू आर द एजेंट, ओके, वी आर डूइंग सम टास्क, सो वी आर द एजेंट। हम सिचुएशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी आर द एजेंट। इन्वायरमेंट में परसीव करेंगे, अपने नॉलेज अपने स्किल के बेसिस पे वी आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स, ओके। इन्वायरमेंट जैसा मैंने बताया डिटरमिनिस्टिक हो सकता है, स्टोकास्टिक हो सकता है, ओके। नाउ सर्च स्पेस का मीनिंग है प्रॉब्लम डोमेन, इन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम डोमेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक सेंसर रिस्क प्रॉब्लम है, कंटीजेंसी प्रॉब्लम है और एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम है, ओके। सो दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2020 आई गेस, जो जून का आपका सेशन हुआ था, जून 2021, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इफ द एनवायरमेंट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल और इफ actions are uncertain, then the agent percepts provide new information after each action. Each possible percept defines a contingency that must be planned for. A problem is called adversible if the uncertainty is caused by the action of another agent. Contingency क्या है, sound क्या है, inference rule क्या है, these are the representation in AI, ठीक है। तो always contingency problem will be the partially observable. Now what is the meaning of partial observable? Somehow we know some information and some information we are not knowing, okay. In that case, if we have the not the full information, then we will percept the environment and we will try to make a new information from our perceived knowledge. So that is contingency problem. Sensorless, if the agent has no sensors at all, then it could be one of the several possible initial state and each action might therefore lead to one of the several possible successive state. Sensor सेंस किया, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट को फाइंड आउट करें। एक्सप्लोर करना मतलब सारे पाथ को एक्सपेंड करना और सबको एक एक करके समझना, ओके। सो दैट इज व्हाई दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स व्हिच अकर्स व्हेन वी आर लर्निंग एआई। नाउ ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया जहां पे मैंने आपको बताया है लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट यू कैन जस्ट ड्रॉप
drop a message, we will provide you the last minute revision notes, है ना. So this is the 4 important way for the Turing test approach. These are the list of uniform, these are the list of uninformed search technique. एक बार सब कुछ पढ़ के अच्छे से जाना है. कई सारे वीडियोस इस पे बने हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर एक दिन का टाइम निकालिए और सबको रिवाइज कर लीजिए. ओके, नाउ दिस इज अ टास्क इन्वायरमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल, जिसको आप क्लियरली सब समझ पा रहे हो. दैट इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल, स्टैटिक, डायनेमिक, सिंगल, मल्टीपल. सो दे आर द इंग्लिश वर्ड. यू कैन इजिली at least attempt the question. Constant satisfaction problem, what is that? The constant is a very important thing. Okay, there is some rule, there is some specification. इसके कई सारे प्रॉब्लम होते, like this is the list of CSP. मेंड एंड एनालिसिस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है. देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट. इस लाइन को पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट. ओके, अगर हम एजेंट की बात करेंगे, एजेंट कैन बी एनीथिंग विच हैज सम ऑटोनोमस कंट्रोल. वो इन्वायरमेंट को परसीव करेगा एंड अपने गोल को फाइंड आउट करेगा. एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड. सो इन दिस स्लाइड आई हैव रिटन कि agent has been monitoring. There are 4 important components of agent behavior. Okay, learning element, where we are learning the things and we are improving ourselves. Critic is about giving the feedback. जैसे आप feedback देते हो पर आजकल नहीं देते हो. Please give the feedback after watching this video, because now 10 days I will giving you one session on one unit. नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है: रिफरेंशियल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी एंड एक्विजिशन एफिशिएंसी. इसमें से कोई भी एक नहीं देगा और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. नाउ यस, क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जा रहे. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नॉलेज रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोपोजिशनल लॉजिक है, वेयर वी आर गेटिंग द आंसर इन यस एंड नो. रूल बेस्ड है, क्वांटिफायर्स है, दैट इज फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट. दिस इज द रिसेंट ईयर क्वेश्चंस. फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग होती है आपकी. सिमेंटिक नेटवर्क, एक ग्राफ बना के हम किसी भी सर्च टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं. फ्रेम, जहां पे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पे डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड द स्लॉट्स. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन एक्सपर्ट सिस्टम, व्हिच इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एआई. यहाँ पे एक यूजर इंटरफेस है, एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी है, वर्किंग मेमोरी है, इन्फ्रेंस इंजन है एंड द नॉलेज बेस है. Without having data, without having vision, without having any natural language processing, we cannot make a domain. We cannot just imagine the domain of artificial intelligence. Okay, इसके बाद कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है. क्या है? CNF. तो आपके जितने भी यहाँ पे आप लिटरल्स लिख रहे हो, वहां पे आपका इंटरसेक्शन होना चाहिए. इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म. नाउ हॉर्न क्लासेस, रिसेंटली पूछा जा रहा है व्हाट इज हॉर्न क्लासेस, तो ये आपको पढ़ लेना है. ओके, state space, yes. Forward planning, backward planning are the part of state space. BFS, DFSC, इन सारे स्लाइड्स में जो अगर आप लास्ट में रिवीजन नोट्स लेते हैं, आई हैव गिवन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो एआई के 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे. ओके, यूनिफॉर्म कॉस्ट में देखिए डेप्थ की बात होती है, मिनिमम पाथ कॉस्ट की बात होती है. हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, इस बार भी पूछा गया है. Iterative deepening, yes, that is the implementation of DFS, advanced version of DFS. See, 15 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 17 में पूछा गया. अभी मैं और क्या लिखूंगी? ब्रांच एंड बाउंड, इस बार ब्रांच एंड बाउंड नहीं पूछा गया है, सो दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ब्रांच एंड बाउंड इज जस्ट लाइक द एल्गोरिदम. ओके, यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या NP-hard प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैन नॉट बी डिस्कार्ड द रिडंडेंट पार्शियल पाथ. ओके, क्लस्टरिंग, यस, डेटा माइनिंग को रिवाइज कर लीजिएगा, बिग डेटा को रिवाइज कर लीजिएगा. Then we have BFS, DFS, all the properties has been written. See, this is a distribution of marks. हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. A स्टार, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट. सब कुछ यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है. ग्रिडी बेस्ड सर्च. ओके, सो ग्रिडी बेस्ड सर्च की अगर हम बात करें, यस, इट इज नॉट ऑप्टिमल बट एफिशिएंट. अब मैं क्या बोलूं, यही पूरा स्टेटमेंट आपके 2021 में पूछा गया है. तो हर स्लाइड में वो क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए थे. अगर आपने ये स्लाइड्स पढ़ा है या हमारे बैच कोर्स को ज्वाइन किया, देन यू कैन इजिली मॉनिटर कि कुछ ऐसे टॉपिक है लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई. आई कैन कमिट कि जो मैंने पढ़ाया है उससे आप एक क्वेश्चन 60 to 70% क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि मैं एनालाइज कर लेती हूँ कि इस बार क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए. नाउ अल्फा बीटा प्रोनिंग, यस, DFS के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो हम प्रोसेस को स्टॉप करते हैं. अल्फा क्या है? अल्फा से हम मैक्स वैल्यू को
प्रिडिक्ट करेंगे, मिनिमम से हम बीटा से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अपर बाउंड लोअर बाउंड। अगेन प्रीवियस ईयर में आपका हिल क्लाइंबिंग नहीं पूछा गया है, तो हिल क्लाइंबिंग को पढ़ के जाइएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ह्यूरिस्टिक है। इसमें 3 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, लोकल मैक्सिमा, प्लैट्यू, रिच, और इसके सॉल्यूशन भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा तो कभी भी वो घुमा फिरा के पूछ लेंगे। ओके, और इसके बाद ये आपके नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी कैन से कि जो इन्फ्रेंस है वो आपका साउंड है या कंप्लीट है। ओके, तो साउंड कब होगा? जब हम सारे सेंटेंसेस जो हमारे केबी से डिराइव्ड हैं। व्हाट इज केबी? नॉलेज बेस। और अगर कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कि नॉलेज से डिराइव्ड है तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट। तो कब कंप्लीट बोलेंगे, कब ये बोलेंगे? दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2020। नाउ ओके, प्लानिंग एल्गोरिथम is yes, this is the again 2021 question, utility based, which deals with the happy and unhappy state। पढ़ लीजिएगा। सिंप्लेक्स का मतलब है जहाँ पे कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं होती है, फुल्ली ऑब्जर्वेबल सिस्टम होगा। ओके, मॉडल बेस्ड जहाँ पे हम कुछ मॉडल बनाएंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। गोल बेस्ड, यस, वहां पे गोल्स डिफाइन होते हैं। सेमी डायनेमिक का ये मीनिंग है जहाँ पे इन्वायरमेंट अपने आप को चेंज करके कुछ पैसेज ऑफ टाइम के बाद दे आर एबल टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। एंड यस, फजी लॉजिक को मत भूलिएगा, क्योंकि फजी लॉजिक पे रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस नहीं देखे जा रहे हैं, तो कोई भी इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोर्ट क्या है, क्रॉसओवर क्या है, और एल्स एक आपको फंक्शन दे देंगे, उस फंक्शन में कुछ वैल्यूज को पुट करना है, और सिंपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, बिकॉज आपके यूजीसी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ट्राई टू अटेम्प्ट। इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, please watch this video and drop the message in the comment box। okay, finally सुपरवाइज अनसुपरवाइज से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये आपको देखकर जाना ही जाना है। सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन, इसको मैंने बोला था आरसी और इसको मैंने बोला था एसी, है ना, एसी आरसी। सुपरवाइज के अंदर क्लस्टरिंग और एसोसिएशन आता है, अनसुपरवाइज के अंदर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन आपके आते हैं। किसके अंदर कौन सा टेक्निक है वो आपको लर्न होना चाहिए। ये हायरार्कीज भी मैंने बना लिया है। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, प्लीज डू ज्वाइन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। दीज आर द सोशल मीडिया अकाउंट, फॉलो करके रखिए। एंड स्टिल प्लीज लाइक, शेयर एंड गिव द वैल्यूएबल कमेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। कल अगेन मैं 5 PM पे लाइव आऊंगी। डू शार्प ज्वाइन मी एट 5 PM। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।